everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Riya Bansal and I currently work as a software engineer at Microsoft. And in today's video, we are going to be introducing a very new series where we will be talking to AlgoCamp graduates. Yes, you heard it right. In this series of videos, we will be introducing a bunch of students who have actually graduated and completed successfully our courses, and they have landed some amazing jobs. In these videos, they will talk about their experience at AlgoCamp, what actually helped them to complete the entire course, and how that overall journey helped them to land a job. So let's get quickly started. Alright, so for today's very first video, we have Purva Aditya with us, who is from Madhya Pradesh. Purva Aditya, over to you. Would you like to introduce yourself? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. My name is Purvaditya Behre. I am in my final year pursuing Bachelor's of Engineering in IT from International Institute of Information Technology, Pune. Currently, I am working as a software developer intern at Nokak Robotics, Pune. I am from 2020 to 2024 batch. In my first year of engineering, I was in electronics and telecom branch. During that time, I scored a decent CGPA, and which eventually led me to upgrade my branch to IT in second year. Outside of academics, I enjoy playing table tennis and have been a national table tennis player. Okay, Purva Aditya, that is quite fascinating. Can you also tell us a little bit about where do you work and what do you actually do there? Okay, so I'm currently working at Nokak Robotics. So basically, Nokak Robotics develops smart medical devices. Basically, they are a segment. They are a segment of hardware and software which are focusing towards the critical care devices. So some projects I would like to highlight that I have previously worked on a data pipeline project where my main task was to convert ventilator parameters data to a generalized medical standard, that is HL7, which is a quite famous standard. And in that I have used the tech stack like Java and somewhat its libraries, HL7 libraries. And now currently I am working on their smart ventilator, that is V730i, where my main task is to build an over-the-air update mechanism which is responsible for downloading updates and installing them in the ventilator. Major tech stack comprises Python, multi-threading, AWS, and etc. Okay, so Purva Aditya, I think you're working on some very fascinating stuff. Now, can you tell us a little bit about how did you actually come across AlgoCamp and which cohort specifically of AlgoCamp were you a part of? Yes, ma'am. So मैं आपको संकेत सर को like from my second year initials मैं वहीं से आपको मतलब follow करते आ रहा था through various channels like CodeChef. Then फिर मेरे को in the third year realize हुआ कि DS is not like is the only thing कि which will eventually lead me to crack good companies or crack me internship. तो उस टाइम मेरे को realize हुआ कि मेरे को I need some decent projects and और मेरे को एक real world hands on चाहिए कि real projects में कैसे काम हो रहा है. तो उस टाइम आप लोग ने एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ये AlgoCamp लिया था, and then perhaps I got to know that you are launching various courses and various cohorts. So I got enrolled in backend development in Node.js. Okay, great. I think that's what we always say to a lot of students as well. सबको लगता है कि शायद DSA करने से बात बन जाती है, बट अगर आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए और आप सीखना चाहते हो कि एक्चुअली रियल वर्ल्ड कंपनीज में प्रोजेक्ट कैसे वर्क करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेरी बेसिक लाइक एक प्रोजेक्ट कैसे सेटअप होता है, गिटहब कैसे काम करता है, लिनक्स कमांड्स क्या होती हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपको एक एक्चुअली में प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट सिर्फ बनाते नहीं हो, उसको डिप्लॉय भी करते हो, उसकी सारी APIs के बारे में पढ़ते हो, right, you actually get a lot of idea of what's really happened when you will actually go for an internship as well. So yes, I feel like that is very important, and I think Purva Aditya did focus on that as well, so that is very good. Okay, so Purva Aditya, next I wanted to ask you that since you were a part of our backend cohort, तो पूरे cohort में आपको सबसे अच्छा क्या लगता था cohort के बारे में when you were studying over here, and then how that particular aspect actually helped you to become a better engineer? मैम बेस्ट पार्ट एज सच तो बहुत सारे हैं. लाइक फर्स्टली आई वुड लाइक टू मेनली हाईलाइट द कंटेंट इज़ वेरी मच इन डेप्थ. लाइक आपको एक पूरा ओवरव्यू पिक्चर क्लियर हो जाता है कि हाउ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक ही जगह पे फोकस कर रहे हो, एक ही टेक स्टैक पे फोकस कर रहे हो, ये नहीं. आप मल्टीपल टेक स्टैक पे जब काम कर रहे हो तो आपको उसके पूरे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए. तो कंटेंट एक बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में रहता है. लाइक आई रिमेंबर्ड लाइक बिफोर वी वर स्टार्टिंग विद द Node.js, सर हैज़ टॉट अस प्रोमिसेस, कॉलबैक्स एंड इवेंट क्यू एंड एसिंक अवेट. तो ये सब टॉपिक्स अगर प्रॉपरली
एक बार कवर्ड हो गए तो देन आपको जब प्रोजेक्ट्स एंड नोट जेएस या के थ्रू आप मतलब बहुत सारी प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो तब ये आपको पूरा मतलब उस टाइम पे अलग से समझना नहीं पड़ेगा, ये सब अपने इन प्लेस फॉल होते जाएगी, आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल स्मूथली क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। तो ये वन ऑफ द मतलब मोस्ट वो था कि कंटेंट बहुत ही अच्छा था। एंड दूसरी चीज़ की लाइव लेक्चर्स में क्या था कि उससे क्या होता है कि कंसिस्टेंसी, अब लाइक देयर आर वेरियस कोर्सेज लाइक यूडीमी कोर्सेज, बट उन सब में कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कि कंसिस्टेंसी में मैं बहुत ही ज़्यादा वीक रहता हूँ, मैं चीज़ पूरा एकदम थ्रू आउट उसकी लेक्चर्स वगैरह कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ। तो इसमें लाइव लेक्चर्स ने रियली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मतलब पूरा प्ले किया कि एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी बना दिया था। उससे मेरे को याद है कि मैंने पार्टीज़ वगैरह भी मिस करी थी जस्ट टू अटेंड लाइव लेक्चर्स। एंड थर्डली कम्युनिटी एंड डाउट सॉल्विंग, कि सबसे अच्छा था कि डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी थी, ऑल वर लाइक हेल्पिंग आउट ईच अदर, और हमारी कोई भी एरर वगैरह आती थी तो सारे लोग मल्टीपल अप्रोचेस बताते थे। उससे ये होता है कि आपका भी नॉलेज बढ़ रहा है और आपको उस पर इंटरेस्ट आता है कि दूसरों की अप्रोचेस में हाउ दे हैव सॉल्व वेरियस थिंग्स। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू thank the teaching assistants who were constantly helping and taking add-on sessions. Like अब इसका मेरा मेन मोटिव ये था, जब मैं थर्ड ईयर में था तो मेरे करिकुलम में एक मैंडेटरी इंटर्नशिप ऐसा सब्जेक्ट था। तो देन फिर लाइक मैंने जब सर के कोर्स में एनरोल किया तो उसके बाद मेरे को सबसे अच्छा जब कंटेंट लगा, तो कंटेंट की वजह से इंटरेस्ट आया तो मैंने सारे लेक्चर्स ऐसे कंटेंट इधर पे एक बम से कंटेंट बम्बार्ड नहीं होता है, आपका कंटेंट ड्रिप पैटर्न होता है। तो उससे आप क्या रहता है कि आप बिल्कुल कंसिस्टेंट मैनर पे लर्न करते जाते हो। तो मैं सारे लेक्चर से बिंज वॉच करता था, वापस अगर कोई प्रॉब्लम जाती थी तो वापस रिवाइज करता था, डाउट्स पूछता था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे को इधर पे टीचिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड इंट्यूटिव लगी, कि आप डायरेक्टली कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन पे जंप नहीं करते हो, पहले आपको प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताते, ओवरव्यू होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा क्लियर होता है, एंड हाई लेवल डिज़ाइन होती है कि हम करना क्या चाहते हैं प्रोजेक्ट पे, एंड देन हम कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे थे जावास्क्रिप्ट में, बट नोबडी हैज़ एवर टॉट कंसेप्ट लाइक कोवर्जन इन द वे द सर हैव टॉट। लाइक ही सिंप्लीफाइड इन द पीसेस, कि फर्स्टली उनने थ्योरी समझाया, फिर उसके बाद कि कैसे एक्मा स्क्रिप्ट ने ओरिजिनली एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशंस वगैरह है और कैसे डिफाइंड हुआ है। ये सारी चीज़ों से आपका एक नॉलेज भी इन डेप्थ बढ़ता है एंड एक इंटरेस्ट आता है कि ओके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड इज़ रियली लाइक आपको वर्थ है कि वो सीख सकते हो, तब जाके आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। Well, that's great to hear. Okay, so पूर्वादित्य, next I wanted to ask you, like you already said कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, एंड यूजुअली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं दैट दे आर नॉट एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, उन्हें फटीग आ जाता है, राइट, एंड दे फील डीमोटिवेटेड आफ्टर सम टाइम अगर उनका कंटेंट कंप्लीट नहीं होता है या वो असाइनमेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट इज वन स्ट्रैटेजी दैट यू फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर कोहर्ट एंड विच यू ऑल्सो recommend students to do as well so that they actually reach to the end of the course, and how do they actually apply that learning when they're trying to apply for internships or for jobs as well? सो मैंने लर्निंग स्ट्रेटेजी तो एज पर इंडिविजुअल सबकी अलग अलग होती है, कैपेबिलिटीज़ भी अलग होती है, बट मैंने एक फैक्ट को बहुत अच्छे से मतलब एनालाइज किया कि एवरी डे आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू। मैंने ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा, ये लाइन बड़ी छोटी है बट इसमें मैंने बहुत ज़्यादा फोकस दिया कि हर दिन मेरे को कुछ नया सीखना है, तो उससे आपके में इंटरेस्ट हमेशा रहेगा, आपको ऐसे कभी फटीग महसूस नहीं होगा, एंड देन आप उससे कंसिस्टेंट भी रहोगे। अब आप जैसे अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप अगर एक दिन कुछ सीख रहे हो तो ये नहीं है कि आप उसको सिर्फ देख के छोड़ दोगे, आप देखो सिर्फ मत, आप देखने के बाद आप अपना एक बार साइड बाय साइड प्रोजेक्ट जो बना रहे हो उसमें अप्लाई करो। जब आप एक बार पूरी चीज़ अप्लाई कर लेते हो तो तब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाता है, ओके दीज आर द थिंग्स देन एंड दीज आर द स्टेप्स जो हमें अप्लाई करना है। और अगर उसमें एरर आ रही है तो आपको डरना नहीं है कि एरर आ रही है मतलब आप सही कर रहे हो, आप उसमें हेल्प लो, स्टैक ओवरफ्लो पे रो, टीए के पास जाइए, डाउट सॉल्विंग पे मतलब क्वेश्चन रेज करो, everyone will answer you एंड डेट्स इट। कि अब इसमें क्या होगा कि आप एक हैबिट में रहोगे, हमेशा हैबिट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, एंड देन आपको ईजिली थिंग्स पूरी ग्रेस्प होगी। एंड फॉर इंटर्नशिप मैं ये एक सजेस्ट करूँगा कि इंटर्नशिप के टाइम पे आपको क्या करना है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है ना वो एक बार प्रॉपरली रिवाइज करना, सारे कोर कंसेप्ट्स करना, कि आपने अगर बैकएंड के कोवर्ट में हो तो आप जैसे नोड.js, जावास्क्रिप्ट, इन सब के आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ना,
एंड आप ट्राई करना कि आप उसको जब आप इंटरव्यूअर वगैरह को समझा रहे हो तो आप उसको उसी लेवल पे, मतलब बिल्कुल लो लेवल पे समझा रहे हो, बहुत ज़्यादा टर्म्स के साथ नहीं खेलना है। आप बिल्कुल ही मतलब चाइल्डिश लेवल पे उनको समझाते जा रहे हो, एंड फिर आपको सही लगेगा कि आपने पूरा एकदम से पूरा जो सीखा है आपने उसी फ्लो पे उनको समझा दिया है। Great. So I think what Purvaditya is basically trying to say is कि even if you're making small progress every day, that still accounts a lot, right? Eventually अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो और उसको practically apply करके actually देख रहे हो कि वो practical scenario में कैसे work कर रही है, it makes a big difference. And then if you know all these basics and आपके basics बिल्कुल clear है ना, तो interview में भी आपको वो concept समझाने में बहुत आसानी होती है, and interviewer को भी लगता है कि you're not just throwing jargons at front of him, right? आपको actually conceptually चीजें पता है, which they actually look for also when they try to, hire someone. So that's great to hear. So this was about Purvaditya's journey. Thank you, Purvaditya, for volunteering to come for this video. I really think that when you share your experiences with others and when you share your success stories with others, तो बहुत ज़्यादा effect अच्छा पड़ता है, बाकियों को भी पता चलता है that what they should really do in order to succeed and how to actually utilize the online courses to the best of its capabilities. Usually लोग course खरीद लेते हैं but वो complete नहीं कर पाते हैं, किसी reason की वजह से वो रह जाता है. So I hope Purvaditya की learning से I hope you all find it useful and you actually learn to know that how courses can be beneficial and how you can actually make the best out of it. So thanks Purvaditya. I wish you the very best for you. I hope the AlgoCamp experience has made you a better engineer right now. Thank you, ma'am, for inviting me.